کراچی کا شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بڑا اقدام۔ کراچی میں اہم ٹریفک کوریڈورز کی بحالی اور خوبصورتی کا منصوبہ۔ ٹریفک کوریڈورز کی اپ گریڈیشن کے لیے 4 ارب 20 کروڑ روپے مختص۔ سیوریج مسائل کے حل اور جدید ڈیزائن پر کام کیا جائے گا۔ سیوریج، گرین بیلٹس، بہترین لین مارکنگ، ٹریفک کے لیے موزوں انفراسٹرکچر شامل۔ راشد منہاس روڈ، ایس ایم توفیقی روڈ، سرشاہ سلیمان روڈ اور پہلوان گوٹ روڈ کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ٹریفک کوریڈورز کی بحالی کے لیے ٹینڈر جاری۔ کورنگی کازوے برج اسی مہینے کھول دیا جائے گا۔ میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی۔ مرتضی وہاب کا منصوبے کا دورہ، جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کا عزم۔ کورنگی ابراہیم حیدری جانے والوں کو بڑی سفری سہولت ملے گی۔ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ کورنگی کازوے برج اسی مہینے کھل رہا ہے۔ میئر کراچی نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ مرتضی وہاب کا منصوبے کا دورہ، جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ملی ٹینک چوک سے صفورہ تک 4 کلومیٹر سڑک تعمیر، ٹریفک بحال۔ ترجمان بی آر ٹی ماہی نلی کے مطابق یونیورسٹی روڈ اور دیگر مقامات پر کام دن رات جاری ہے۔ حکومت 27 کلومیٹر طویل منصوبہ رواں سال مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ملی ٹینک چوک سے صفورہ تک 4 کلومیٹر سڑک تعمیر، ٹریفک بحال۔ ترجمان بی آر ٹی ماہی نلی کے مطابق یونیورسٹی روڈ اور دیگر مقامات پر دن رات کام جاری ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی طرح دیگر جماعتیں بھی کام کریں تو شہر زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ جن ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے وہ ہر صورت مکمل کیے جائیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی پرجوش۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع شرقی صفورہ ٹاؤن گلزار ہجری اسکیم 33 میں رحیم بخش سومرو روڈ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریر سے خطاب میں بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ رحیم بخش سومرو روڈ 3500 فٹ طویل اور 36 فٹ چوڑی ہے، جسے جدید انجینئرنگ معیار کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے۔ 104 ملین روپے ہم نے خرچ کیے اس جگہ پر اس نئی سڑک کی اثر نو تعمیر کرنے کے لیے۔ یہ بالکل ہی سڑک نہ ہونے کے برابر تھی اور بارشوں کے دنوں میں بہت لوگوں کو یہاں تکلیف ہوتی تھی۔ تو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف منظر اس سڑک پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں کی قیادت نے یہاں کی عوام کا مقدمہ ہمارے سامنے رکھا اور ہم لوگوں نے عوام کی امنگوں کو پورا کرتے ہوئے اس وعدے کو پورا کیا۔ تو آج ماشاءاللہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کوئی تختی لگا دے، کوئی اعلان کر دیں۔ آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو وعدہ لوگوں سے کیا گیا تھا اس وعدے کو وفا کر سکیں، اس کام کو مکمل کر سکیں، اور ماشاءاللہ آپ کو کام وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صفورہ ٹاؤن میں پہلوان گوٹ روڈ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ اگلے ہفتے اس سڑک کا ٹینڈر جاری کر دیا جائے گا اور اسی مالی سال میں اہم ترین منصوبے پر کام مکمل کریں گے۔ آئندہ چند روز جہانگیر روڈ پر بھی کام کا آغاز ہو جائے گا۔ جہانگیر روڈ کے مسئلے کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 روز میں ہم کام عملی طور پر سٹارٹ کر دیں گے، اور میں نے 60 دن کا اعلان کیا تھا کہ 60 دن سٹارٹنگ فرام 5-6 جنوری جب یہ کام سٹارٹ کیا جائے گا، اس کام کو مکمل کر کے جو جہانگیر روڈ کی عوام ہے، جو سینٹرل کی عوام ہے، جو گرو مندر کی طرف جاتی ہے، امیجنا روڈ کی طرف جاتی ہے، اس کو ہم ایک بہترین سڑک دینے میں کامیاب ہو پائیں گے، تاکہ جو لاکھوں افراد اس سڑک کو استعمال کرتے تھے ہمارے کراچی والے، ان کا جو ایک دیرینہ مسئلہ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے حل کرنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر بینرز لگانے سے مسائل حل نہیں ہوئے۔ میری کراچی کی کسی سڑک پر تصویر موجود نہیں۔ ٹاؤنز کے پاس بعض معاملات میں میئر سے بھی زیادہ اختیار موجود ہیں۔ اگر اس کے باوجود وہ عوامی مسائل حل نہیں کرتے تو انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کلانڈی چراغ ہوٹل کے قریب چلتے رکشے میں اندھی گولی لگنے سے لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ لڑکی کی شناخت 17 سالہ کومل کے نام سے ہوئی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں، کہتے ہیں کہ واقعے کے موقع پر موجود اہلکاروں نے بتایا کہ پولیس مقابلہ ہو رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گولی وہی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ کلانڈی چراغ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے لڑکی کی ہلاکت معمہ بن گئی۔
गोली पुलिस की लगी या मुल्जिमान की, मामला हल ना हो सका। अंधी गोली लगने से 17 साल कोमल जिंदगी की बाजी हार गई। लड़की फर्स्ट ईयर की तालबा और वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अहले खाना गम से निढाल, रो रो कर बुरा हाल हो गया। कोमल की चचा का कहना था कि बच्ची अपनी फैमिली के साथ नानी के घर से अपने घर जा रही थी कि वाकया पेश आया। रक्षा में वालदा कोमल और एक भाई मौजूद था। गोली रक्षा के शीशे को तोड़ती हुई कोमल को लगी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि पुलिस मुकाबला हो रहा था। ये बच्ची अपनी नानी के गई हुई थी स्कूल की छुट्टियां गुजारने के लिए। ये वहाँ से वापसी आ रहे थे। कुरंगी का कह रहे हैं कि जी कुरंगी चिराग होटल पे कहीं फायरिंग हो रही है, कोई पुलिस मुकाबला हो रहा है। उसके अंदर बच्ची को गोली लग गई और कह रहे हैं जी ऑन द स्पॉट मर गई। हमें सिर्फ यही है कि यार देखो इतनी सी बच्ची, उसने किसी का क्या बिगाड़ा। वालिद का कहना था कि मेरी इकलौती बेटी थी, वो भी चली गई। आए दिन ये वाकयात पेश आते रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कानूनी कार्रवाई करवा कर क्या करेंगे? कार्रवाई क्या करवाएंगे? कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो यार। रेस्क्यू तर्जुमान शाहिद चौधरी का कहना था, वालदा ने पहले चिराग होटल का बताया था, फिर बताया कि लांडी 6 नंबर के करीब वाकया पेश आया। पहले रिक्शा ड्राइवर जख्मी लड़की को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल ले गया, फिर वहां से जिना लेकर आया। बकौल कोमल की वालदा के ये बच्ची जो है अपनी नानी के घर से अपने घर आ रही थी कि पहले उन्होंने लोकेशन बताई थी लांडी चिराग होटल, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वालदा कंफ्यूज हैं, तो उन्होंने अभी लोकेशन बताई है लांडी 6 नंबर के आसपास कहीं वाकया हुआ है और बच्ची के सीने पे गोली लगी है। रिक्शे के शीशे से पार होकर बच्ची को सीने पे लगी है, जो इसकी जानलेवा साबित हुई है गोली, और कुरंगी सिंध गवर्नमेंट मुंतकिल किया है। फिर वहाँ से जो है छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल लाया गया है। 17 साल इनकी एज है। पुलिस हुकाम के मुताबिक थोड़े फासले पर मुल्जिमान से मुकाबला हो रहा था, लेकिन कोमल को किसकी गोली लगी है, इसकी तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कोरंगी जमान टाउन यूसी 2 में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। 33 इंच की मरकजी पानी लाइन से पानी की तरसील मुकम्मल बंद हो गई। हजारों घर मुतासर हो रहे हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कोरंगी जमान टाउन में पानी नायाब हो गया। इंतजामी गफलत के बायस इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी यूसी 2 में 33 इंच की पानी की लाइन एक बार फिर दरख्तों की जड़ों की जद में आ गई। जड़ें फैलने से पानी की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिससे इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। यूसी कोऑर्डिनेटर रिजवान का कहना है कि सड़क के बीच फुटपाथ पर मौजूद दरख्तों की जड़ें पानी की लाइन में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से हर 6 माह बाद लाइन को क्लियर करना पड़ता है। ताहम मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं किया जा सका। ये लाइन का जो मसला है, ये हमें 4-5 साल से ये मसाइल दरपेश हैं। ये जो जड़ें हैं इस दरख्त की, ये लाइन के अंदर आती हैं। एसी को, कमिश्नर को, एमडी वाटर बोर्ड को, तमाम इदारों को खतूत लिखे हैं यूसी की जानिब से कि इन दरख्तों को कटवाया जाए, और हमने इस बात की भी उनको ज़मानत दी है कि ये जितनी बड़ी तादाद में दरख्त लगे हुए हैं, इससे बड़ी तादाद में हम माहौल दोस्त दरख्त लगाने के लिए तैयार हैं। इलाका मकीन कहते हैं किल्लत आब के सबब मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए हैं। ये जड़ फैलने की वजह ये पेड़ है। ये पेड़ अंदर पानी के नीचे कनेक्शन के अंदर जा रहा है। हमारा इलाका तो 450 क्वार्टर का है, फिर ये जेरिए में आ जाओ, फिर आगे आइडिया चले जाओ, ये समझो पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है। ये वाले जो दरख्त है ना, ये वैसे भी भाई ये जड़ें जो है ना ये लाइनों में जाती हैं। ये दरख्त तो वैसे भी आपको पता है क्या चीज़ है, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे। जिला इंतजामिया फौरी इस मामले का मुतबादिल हल निकाले ताकि कोरंगी यूसी 2 में पानी का मसला हल हो सके। कैमरामैन सैयद अमजद के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। शहर कायद में मसाइल के अंबार। लाइन्स एरिया टेलीफोन एक्सचेंज के अतराफ इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़क पर कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन जहनी अजियत में मुब्तला है। तिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर की रौनकें मान पड़ने लगी। कचरे और गलाजत के ढेर के बाइस फिजा में ताफुन। लाइंस एरिया टेलीफोन एक्सचेंज के अतराफ का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। कचरे के अंबार और सीवरेज के पानी जमा से बीमारियां फूट पड़ी। सड़कों पर सीवरेज के पानी ने मामूलात जिंदगी मफलूज करके रख दी। राहगीरों के लिए आमदोरफ्त भी इम्तिहान बन गई। इलाका मकीन संगीन सूरत-ए-हाल पर सीख पा। कहते हैं कचरे और गलाजत के बाइस यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार की वजह से बहुत कारोबार भी बैठ गया है। इसकी वजह से गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई। काफ़ी
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया से ये कहना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता इसको जल्द से जल्द तैयारी करके सफाई करवाएं यहाँ से। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के पानी की वजह से कपड़े नापाक हो जाते हैं। नमाज के लिए मस्जिद तक जाना मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया ने अमली इकदाम से हाथ उठा रखा है, काम करने में संजीदा नहीं दिखाई देते। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद भी सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। अब हम पीछे से गलिया, आज यहाँ से गुजर के आए तो जूता ही गंदा हो गया। हम नमाजी आदमी है, इत्तेफाक आके हम फिसल जाए हमारा पैर, तो आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना, खर्चा तो हमारा है, परेशानी हमें, क्या कर सकते हैं। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया फौरी नोटिस ले, कचरा उठाए और सीवरेज के पानी की निकासी की जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मलीर मॉडल कॉलोनी में नए साल के आगाज से गैस गायब है। चूल्हे ठंडे होने के बायस 1000 से ज्यादा घराने शदीद अजियत काट रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। नए साल का आगाज से चूल्हे ठंडे, मलीर मॉडल कॉलोनी के मकीन ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल मॉडल कॉलोनी के 1000 से जायद घराने नए साल के आगाज से ही सुई गैस की बंदिश झेल रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पहले ही बिजली और पानी के मसाइल मौजूद थे, अब गैस की बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी है, जिसके बाइस घरों में खाना पकाना मुश्किल हो चुका है, जबकि बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शदीद परेशानी का शिकार हैं। बच्चे भी बगैर नाश्ते के गए दो कल, और सारा दिन थी नहीं, कल भी नहीं थी, और बिजली भी नहीं है इत्तेफाक से यहाँ पे मॉडल कॉलोनी में 24 घंटे हो गए। पानी भी नहीं है, बड़ा परेशानी का आलम है यहाँ पे। गैस नहीं आ रहे, यही है कि खाना पकाना बाजार से तो लाने से रहे, हर रोज तो नहीं अफोर्ड कर सकता कोई भी। इलाके के सोशल वर्कर रियाज खान के मुताबिक हाल ही में सुई गैस की नई लाइनें बिछाई गईं, लेकिन नई लाइनों से कनेक्शन दिए बगैर ही पुरानी लाइनों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जिसके बायस पूरा इलाका गैस बहरान की लपेट में आ गया। सुई सदरन गैस ने यहाँ पे नई पाइप लाइनें डाली हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हमें बताए बगैर पुरानी जो जिससे हमें गैस मिलती थी उसको मुनक़ता कर दिया है। 31 दिसंबर की रात से 2 दिन से हम मॉडल कॉलोनी की आवाम जो है बहुत सख्त परेशान है। हमारा यहाँ गैस भी नहीं, कल 24 घंटे से बिजली भी नहीं थी, पानी का भी मसला है और सीवरेज का भी मसला है। रिहायशियों ने शिकायत की कि मुताद्दिद दरखास्तें देने के बावजूद सुई सदरन गैस हुक्काम कनेक्शन बहाल करने में कोई संजीदगी नहीं दिखा रहे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत के बाद टोल टैक्स में भी कमी का मुतालबा। तनवीर भट्टी और राना तारिक बोले, डीजल सस्ता होने से गुड्स गाड़ियों के किराए में कमी आ चुकी। काविश मेमन की रिपोर्ट। मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन, अब टूल टैक्स भी कम किया जाए। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने अहम मुतालबा कर दिया। गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के रुकन राना तारिक ने कहा कि डीजल सस्ता होने के बायस गुड्स गाड़ियों के किरायों में कमी आ चुकी और कराची से लाहौर जाने वाली गुड्स गाड़ियों के किराए में तकरीबन 50,000 रुपए तक कमी आई है। हमारी तरफ से भी बहुत बड़ा फायदा हो चुका होगा, आवाम को भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर हुकूमत इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलस है, ट्रांसपोर्ट बरादरी को बेहतर तरीके से आगे लेके जाना चाहती है, अगर टूल प्लाजों में भी कमी करे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने किराए और भी कम कर देंगे। गुड्स कैरियर के एग्जीक्यूटिव मेंबर तनवीर अहमद भट्टी ने भी मुतालबा किया कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को मजीद रिलीफ दे, टूल टैक्स में कमी करे ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। की जो कीमतें कम हुई हैं ये खुशाइन बात है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के जो और मसले मसाइल हैं जैसे टूल प्लाजा है, हमारे पिछले दिनों हड़ताल में जो ड्राइवरों के लाइसेंस का इशू था, ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए कोई आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक पाकिस्तान को चलाने वाला वो अदारा है जो एडवांस में टैक्स देता है ना, तो डीजल कम होना एक खुशाइन बात है। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद टूल टैक्स में भी कमी की जाए ताकि ट्रांसपोर्ट लागत मजीद कम हो और उसका फायदा बराह रास्त आवाम को मिल सके। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। कराची प्रेस क्लब के बाहर मेहनत कशों का भरपूर एहतजाज। पीपल्स लेबर ब्यूरो ने इदारों की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे और अदालती दरवाजे खटखटाने का ऐलान कर दिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। इदारों के निजकारी के खिलाफ पीपल्स लेबर विंग सरापा एहतजाज। लेबर बोर्ड के खात्मे पर मुजाहमत और स्टील मिल्स की बहाली का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में स्टील मिल्स, डाक लेबर बोर्ड, PIA, पोर्ट कासिम और दीगर इदारों के सैकड़ों मेहनत कशों ने शिरकत की और निजकारी के खिलाफ नारेबाजी की।
पीपल्स लेबर ब्यूरो के मरकजी सदर चौधरी मंजूर ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत ने हम पर जंग मुसल्लत की है। ये जंग अदालतों, पार्लियामेंट और मैदानों में लड़ी जाएगी। कि तुम्हारे पास क्या प्लान था? उन वर्कर्स को कोई पैसे देने का प्लान था, इसको चलाने का प्लान था, इसको बेचने का प्लान था, क्या प्लान था? और आज स्टील मिल के मेहनत कशों की हालत क्या है? मुजाहिरे से हबीबुद्दीन जुनैदी, जहरा खान, हिदायतुल्लाह, असलम सम्मू, हुसैन बादशाह और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। आज का जो मुजाहरा कराची प्रेस क्लब पर हुआ है, ये जो है बहुत ही मेहनत कशों का एक नुमाइंदा इज्तिमा था और इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन शामिल नहीं थे, बल्कि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस के भी कारकुनान अच्छी तादाद में शामिल थे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का मुतालबा किया और डाक लेबर वोट के खात्मे के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत का ऐलान किया। निष्कारी से सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को नुकसान होता है। मैं विक्टिम हूं कि इलेक्ट्रिक की निष्कारी से। मेहनतकश रहनुमाओं ने इस खदशे का इजहार भी किया कि इदारों की निष्कारी से हजारों मेहनतकश बेरोजगार होंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी और फराज खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सार्फिन को 3500 मेगावाट से जायद बिजली की तलब कामयाबी से फराहमी। कौमी ग्रिड से बिजली हासिल करने की इस्तेदाद बढ़ाकर 2000 मेगावाट तक कर दी गई। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में 3,20,000 किलोग्राम गैर कानूनी वायरिंग हटा दी गई। के इलेक्ट्रिक ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 2025 में 27 लाख सार्फिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुंसलिक। लाइव ऐप के जरिए 12 लाख सार्फिन को सहूलत की फराहमी। केएलटी को खित्ते में सबसे पहले S4 सैप हाना सिस्टम का भी आगाज। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में 3,20,000 किलोग्राम गैर कानूनी वायरिंग हटा दी गई। केएलटी ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। केएलटी ने साल 2025 में मुस्तहकम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साल के दौरान 339 नई सनती बिजली कनेक्शन फराहम किए। सार्फिन को 3,500 मेगावाट से जायद बिजली की तलब कामयाबी से फराहम की। साल के दौरान कौमी ग्रिड से बिजली हासिल करने की इस्तेदाद बढ़ाकर 2000 मेगावाट। साल के दौरान 27 लाख सार्फिन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुंसलिक और लाइव ऐप के जरिए 12 लाख सार्फिन को सहूलत फराहम की गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक खित्ते में सबसे पहले S4 सैप हाना सिस्टम नाफिज किया। फर्क पड़ता है मुहिम पर केएलटी को ग्रैंड प्री FE अवार्ड से नवाजा गया। तर्जुमान के मुताबिक केएलटी ने मुल्क की पहली AI पर मबनी चैट बूट मुतारिफ कराई, जो रोजाना 3000 चैट्स हैंडल करती है। तर्जुमान के मुताबिक 38 लाख सार्फिन को खिदमात फराहम कर रहे हैं। केएलटी का तरसीली और तकसीमी नेटवर्क 6500 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। केएलटी के निज़ाम में 78 ग्रिड स्टेशन और 2135 फीडर्स फाल हैं। बिजली की फराहमी के लिए 32,000 से ज़ायद ट्रांसफार्मर केएलटी के नेटवर्क का हिस्सा हैं।